Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Aquarius Ascendant and the predictions for the month of February 23. So let us dive in straight away. Aquarius Ascendant people are going to see traveling for pleasure or religion till 14th of February. Venus is going to transition in the first house. This would mean that they are going to enjoy vehicle, whether it is their own vehicle or they are going to procure it from some other place, it doesn't matter. But this is a time to have fun from vehicles, high-end luxury clothing due to presence of this Venus in the first house. You can also end up buying a luxury vehicle during this transit of Venus from the first house. Now, what does luxury vehicle means? The definition is that whatever your average earning is for the month, this vehicle will cost you much more than that. That is a luxury vehicle for each and every individual, and the probability of you buying such a vehicle is quite high in this month. Now, time from 14th of February is also the time to make a fresh start because Saturn is now firmly posited in your first house. You should stick to your principles and avoid anything illegal. People with Saturn in the first house in the transit or their birth chart should always take a very straightforward and honest approach in their life. Otherwise, this Saturn punishes them. They should stay away from opposite gender, wine, and any kind of a vices. This Saturn will cast its 10th aspect on your work or the professional domain, and it is going to massively increase responsibilities at the workplace, and all of the people who will take up this challenge with focus and determination, this Saturn will reward them over its transit from the Aquarius sign during the next 2.5 years. You should also avoid getting into arguments with people who have authority at their workplace, or if you're dealing with the governments, then people who are occupying the higher slots in the hierarchy of the government at least till 12th of February, till the time Sun is transitioning through your 12th house. During this transit of Saturn, it is also advised that you should shun alcohol, tobacco, and the most important element of all of them, which is laziness. Since Saturn is aspecting both the 7th as well as the 10th house, you may face issues related to the health of the spouse. On the other hand, this planet in the first house is also giving you an opportunity for a new beginning between 13th February to 14th of March. During this time frame, Sun is also going to transition from your first house, and it is going to increase your ego. Whenever Sun passes through the first house, it always causes an inflation in the ego of an individual, and the person starts to feel that they are someone very, very important. And their behavior also changes when interacting with their peers or with their friends. So just cast aside your ego during this time frame, and scenario on the work front is going to improve, especially if you are doing a job after 15th of February. Jupiter also continues to aspect the 10th house, and it is going to give you an opportunity to start your own business. Hence, all those people who have been planning to start on their own, this is a very good time frame to do that. People in speculation are going to see a very good time from 24th of February to 10th of March, because Mercury will also shift along with Sun in the first house of you and formulate a trine relationship with the fifth house. So this will be a very good time frame for not only the speculators but also for the students, as well as for those who are looking for romance. If you are invested in the foreign equity markets, then this is a good time for you to book profit and exit the market completely. In the month of May and June, there is going to be some kind of a slowdown as far as returns from equity is concerned, and it is better that you get out till the time you have some time in your hand. Now, there are also certain dates when you need to be very careful and avoid taking any key decisions. These are the dates when Moon passes through your 68th or 12th house. So the dates in February where you need to be careful are 9th and 10th of February and 18th and 19th of February. If you look overall, this transit of Saturn in the first house is going to bring a lot of opportunities as well as challenges in your life, and all those people who accept it and are willing to put a lot of hard work, this Saturn is going to reward them with many fold returns. So that's the summary for you for this month. Please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं।
आज हम देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए फरवरी का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो कुंभ लग्न के लोगों के लिए एक घूमने फिरने का मौका बन रहा है, चाहे वो खुद के लिए प्लेजर ट्रिप हो या रिलीजियस ट्रिप हो। 14 फरवरी तक कहीं बाहर जाने के, आउटिंग के बहुत अच्छे आपको मौके मिलेंगे। शुक्र लग्न स्थान से ही भ्रमण करता रहेगा और शुक्र आपके लिए एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी बनता है, चतुर्थ और नवे भाव का। तो अगर आप इस शुक्र को बलवान करते हैं, परफ्यूम्स लगा के, अगरबत्तियां जला के, नए कपड़े पहन के, ये शुक्र आपको पैसे लाके देने का काम करता है। तो यहाँ पे शुक्र का प्रथम भाव से जाना यानी आपके लिए एक वाहन को एंजॉय करने का योग बनता है। और चाहे ये खुद का व्हीकल हो या आप कहीं से बोरो करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये आपके लिए व्हीकल एंजॉयमेंट का समय है, फरवरी का महीना। आप इस समय में कोई लग्जरी व्हीकल भी खरीद सकते हैं। देखिए, जो लग्जरी व्हीकल का डेफिनेशन वो यही है कि आप अपने जो भी एवरेज आपकी अर्निंग है उससे ज़्यादा का एपत वाला वाहन खरीदते हैं, वो आपके लिए लग्जरी व्हीकल बन जाता है। अभी हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग होती है इसके लिए, तो वो खरीदने का भी योग इस महीने में आपके लिए बनता है। 14 फरवरी से आपके लिए एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि अब 16 जनवरी को कुंभ राशि में आ गया था, ये यहाँ पर अब फर्मली बैठना लग जाएगा और अपने परिणाम देने लगेगा। और आपको इस समय में अगले 2.5 सालों में पूर्णतः अपने गोल पे फोकस करके काम करना है। अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए, कुछ भी अनएथिकल काम मत कीजिए। कि शनि जब भी प्रथम भाव से निकलता है या जिनकी भी कुंडली में ही प्रथम भाव में होता है, वो अगर कोई भी टेढ़ा मेढ़ा काम करते हैं तो वो शनि इनको बहुत पनिशमेंट देता है। शनि जिनके प्रथम भाव में लग्न कुंडली में होता है, उनकी लाइफ नॉर्मल लोगों के मुकाबले में बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उनको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये कुछ भी अगर गलत काम करते हैं, चाहे सिगरेट पीना है, शराब पीना है, या फिर दूसरे जेंडर के साथ अनैतिक संबंधों में घुसना है, ये सब में शनि इनकी बैंड बजा के रख देता है। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने प्रिंसिपल से चिपके रहें और सर झुका के मेहनत करें अगले 2.5 सालों में। शनि का 10वां जो दृष्टि है वो आपके कार्यस्थल पे पड़ेगा, और शनि की दृष्टि जब भी कार्यस्थल पे आती है तो व्यक्ति की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। उसकी लाइफ में काम के अलावा और कोई चीज़ रह नहीं जाती है। और जितने भी लोग इस तरह का चैलेंज स्वीकार करते हैं एक फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ, उनको ये शनि अपने इसी टाइम स्पैन में रिवॉर्ड करके जाता है। तो आपके अगर किसी भी अपने अथॉरिटी में ऊपर बैठे हुए लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो उनको अवॉइड कीजिए 12 फरवरी तक, क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव से भ्रमण कर रहा है 12 फरवरी तक। और यहाँ पे अगर आप अपने से सुपीरियर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स करेंगे तो आपके लिए फिर ये भारी पड़ेगा समय, इसलिए 12 फरवरी तक का समय अवॉइड कीजिए। अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट से भी डील करते हैं तब भी ऊपर के लोगों से वाद विवाद करने से बचिए। जब भी शनि प्रथम भाव से गुजरता है तो व्यक्ति को मदिरा पान, सिगरेट पान ये सब छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आलस्य को दूर रख के काम में लग जाना चाहिए। ऐसा समय हमेशा चैलेंजिंग होता है, लेकिन व्यक्ति अगर अपना कोई एक स्किल सेट डेवलप कर ले इस समय में, तो वो उस स्किल सेट से आगे अपने आप को काफ़ी डिफरेंशिएट कर सकता है। और इस समय में सीखी हुई चीज़ों का उसको आर्थिक रूप से भी आगे जाके बहुत लाभ होता है। अब शनि की सप्तम दृष्टि आपके बिजनेस पार्टनर, बिजनेस या पति या पत्नी वाले स्थान पे भी पड़ेगी, और 10वीं दृष्टि 10वें भाव पे पड़ेगी, तो आपके पति या पत्नी को भी कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं फरवरी के महीने में। लेकिन 13 फरवरी से 14 मार्च का समय ऐसा है जब आप अपने लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसी समय में सूर्य भी आपके प्रथम भाव में आ जाएगा। सूर्य जब भी प्रथम भाव में आता है तो व्यक्ति का अहम जगाता है, ईगो बढ़ाने का काम करता है। व्यक्ति अपने आप को एक बड़ा फन्ने का समझने लगता है और इसकी उसको कई बार एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों से बचिए। आप कैसे अपने पीयर्स या दोस्तों के साथ बिहेव करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए 13 फरवरी से 14 मार्च में। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो 15 फरवरी के बाद आपके कार्य क्षेत्र के हालातों में डेफिनेटली काफी हद तक सुधार आना शुरू हो जाएगा, और ये शनि यहाँ पे आपको जिम्मेदारियां तो बढ़ाकर ही देगा, उसके आप बच नहीं पाएंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ पे जितने भी लोग अपना स्वयं का बिजनेस चालू करना चाहते थे उनके लिए भी ये गुरु अच्छा एक मौका बना के दे रहा है अपना स्वयं का बिजनेस चालू करने का। और जितने भी लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं उनके लिए भी फरवरी का आखिरी का वीक बहुत अच्छा है। तो 24 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध
आपके लग्न स्थान में आ जाएगा 24 फरवरी को, और यहाँ पे खुद की ही भाव के साथ नवपंचम योग करेगा। तो ये 16-17 दिन आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेंगे स्पेक्यूलेशन की दृष्टि से। इसके अलावा अगर आप छात्र हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं अभी, या फिर आप रोमांटिक नेचर के व्यक्ति हैं, तो उनके लिए भी ये समय 16-17 दिन काफ़ी अच्छे हैं, 24 फरवरी से 10 मार्च तक के। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कहीं भी फॉरेन कंट्री में है, खास करके फॉरेन के शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंडिया में बैठे हैं और नैस्डैक में इन्वेस्ट करते हैं या निकी में इन्वेस्ट करते हैं, तो निकल जाइए अपना प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि मई और जून में मार्केट में काफ़ी करेक्शन होने की संभावना बन रही है। तो बेहतर है कि आप इस समय का लाभ उठा के प्रॉफिट बुकिंग करके अपना सारा स्टेक बेचकर निकल जाइए। हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना पड़ता है। तो फरवरी के महीने में वो दिन है 9 और 10 फरवरी, और 18 और 19 फरवरी। इन 4 दिनों में आप सावधान रहिए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये शनि का आगमन प्रथम भाव में, यानी आपके लिए बड़ी मेहनत का समय है। अपना स्किल सेट बनाने का ये बहुत सुनहरा अवसर है आपके लिए। और अगले 2.5 साल जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो तर जाएगा। आपको शनि रिवॉर्ड देना शुरू करेगा धीरे धीरे करके, क्योंकि शनि कुछ भी एकदम से नहीं देता है, काफ़ी मेहनत करवाने के बाद ही वो परिणाम देता है। तो ये कमर कस के मेहनत करने का समय है, और वैसे भी कुंभ लग्न के लोग बहुत मेहनती होते हैं। मेहनत करने के लिए ही वो इस पृथ्वी पे आते हैं। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।